Children, in this series we are discussing all important derivations of the topic capacitor so that when you are going to appear in your board exam, you are having compact material for your board exams, what you should prepare before entering the examination hall. So this is second important derivation, that is expression of energy stored in capacitor. So energy is stored between the capacitor plates in the space where electric field exists. Now how do we store energy in the capacitor? We store energy in the capacitor when capacitor is charged by connecting plates with the two terminals of a battery. Now what battery does? Battery transfers electrons from one plate to other. In this process, the plate which is losing electron starts getting positive charge and the plate which is getting electron starts getting negative charge. Better this transfer of charge continues till potential difference between the two plates is not equal to potential difference between the terminals of the battery. And here we are representing that potential difference with the alphabet V0. So now capacitor is charged, electric field between the two plates is established, potential difference between the plates has reached to the battery terminals potential difference, that is V0. अभी हुआ क्या? बैटरी ने जो ये चार्ज ट्रांसफर किया, इस प्रोसेस में बैटरी ने काम किया. So in this process of charge transfer, battery does work. This work is stored in the form of electrical energy between the plates of the capacitor. I hope आपको समझ आ रहा होगा कि बैटरी ने जो काम किया वही इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो रहा है. और बैटरी ने किस प्रोसेस में काम किया? बैटरी ने इलेक्ट्रॉन को एक प्लेट से दूसरी प्लेट तक पहुंचाकर इस कैपेसिटर को चार्ज करने में काम किया. तो अब हमें समझ में आ रहा है कि अच्छा, कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच जो एनर्जी है वो किसके बराबर है? बैटरी ने जितना काम किया उसके बराबर है. तो अब ये जो चार्ज के ट्रांसफ़र का प्रोसेस था, इसको हमने कैसे देखा? एक्चुअली तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहे थे, लेकिन हमने कहा कि जो प्लेट निगेटिवली चार्ज हो रही है उससे पॉजिटिव चार्ज इस प्लेट पे पहुंच रहा है और ये काम बैटरी कर रही है. तो बैटरी चार्जिंग का प्रोसेस जब कर रही है तो किसी मोमेंट पर उस प्रोसेस में मान लो कि जो चार्ज इकट्ठा हुआ है वो प्लस स्मॉल क्यू है. अब तक जो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हुआ है वो V है और उसके बाद बैटरी नेक्स्ट बहुत छोटा डी क्यू चार्ज अपने चार्ज ट्रांसफ़र के प्रोसेस में फिर से एक प्लेट से दूसरी प्लेट पे ले जाती है. तो कितना काम बैटरी को करना होगा अगर पोटेंशियल डिफरेंस उन दो पॉइंट्स के बीच V है, जिन दो पॉइंट्स के बीच ये डी क्यू चार्ज ट्रांसफ़र होना है? हमें पता है that work done in this process is charge which is transferred into potential difference between those two points where the charge is transferred. अब हमें ये पता करना है अगर कि पूरे चार्जिंग के प्रोसेस में बैटरी ने कितना काम किया, तो सिंपली हम इसे इंटीग्रेट कर देंगे. और ये प्रोसेस हमको इसलिए यूज़ करना पड़ रहा है क्योंकि जैसे जैसे चार्जिंग का प्रोसेस आगे बढ़ रहा है पोटेंशियल डिफरेंस बदल रहा है. तो हमें इंटीग्रेशन के थ्रू ही इस तरह के वेरिएबल क्वांटिटीज़ के केस पे डील करते समय टेक्निक यूज़ करनी पड़ती है. ये हम क्लास 11 से पढ़ते आ रहे हैं. अगर आपको इस इंटीग्रेशन प्रोसेस में या डिफ्रेंसिएशन के कॉन्सेप्ट में कोई प्रॉब्लम है तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी. कैपेसिटर के जो दूसरे टॉपिक्स और पूरी कैपेसिटर प्ले लिस्ट की टॉपिक जिस प्लेलिस्ट में है वो सारे लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी. आप वहाँ से सारे टॉपिक्स को रिवाइज कर सकते हैं या समझ सकते हैं. अलॉन्ग विद इट ऑल माई हैंड रिटन नोट्स, PDF of these notes are available on my Telegram channel. I will give you link of that channel also in description box. So go through the description box if you want any help about the topic capacitor. So you can download my notes also from that channel. So work done in charging this capacitor up to Q coulomb, we simply integrate this quantity, substitute the value of dW here and then in place of V हम लोग capacitance is equal to
Q बाई V से V इज इक्वल टू Q बाई C, ये सब्सटीट्यूट कर देंगे यहाँ पर। और कैपेसिटेंस Q पर और V पर डिपेंड नहीं करता है। इस पॉइंट को आप नोट करिए। बेटा कैपेसिटेंस के फॉर्मूले में चार्ज अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस आता है, तो हम सोच सकते हैं कि चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस पर कैपेसिटेंस डिपेंड कर सकता है, लेकिन पिछले क्लास में हमने समझा था कि कैपेसिटेंस 3 फैक्टर्स पर डिपेंड करता है: एरिया ऑफ द प्लेट्स, डिस्टेंस बिटवीन द 2 प्लेट्स एंड द मटीरियल फिल्ड बिटवीन द 2 प्लेट्स। तो कैपेसिटर को जितना चार्ज मिलता है उसी रेट से उसका पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ता है। तो Q अपॉन V ये कांस्टेंट रहता है। तो हम C को यानी 1 अपॉन C को बाहर करेंगे इंटीग्रेशन से, तो हमें मिलेगा Q dQ। इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा Q स्क्वायर बाई 2। अपर लिमिट दैट इज टोटल चार्ज और लोअर लिमिट दैट इज 0 कूलम। ये सब्सटीट्यूट करने पर जो काम बैटरी का आता है दैट विल बी Q स्क्वायर बाई 2C। और अगर आप Q की जगह CV नॉट कैपेसिटेंस इनटू फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 प्लेट्स वो रख दे, तो आपको बैटरी का जो वर्क डन है वो हाफ CV नॉट स्क्वायर मिल जाएगा, और यही एनर्जी स्टोर्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर होगी। आई होप कि ये इजी है और आपको बात समझ में आई। तो मैंने सारे टॉपिक को बहुत छोटे छोटे स्मॉल इंटरवल के टॉपिक सब टॉपिक्स में डिवाइड करके इस सीरीज़ को फ्रेम किया है, जिससे कि आप बहुत देर तक अगर बैठने में कैपेबल नहीं है तो भी आप अपने टॉपिक को तैयार कर सकें। एक डेरिवेशन तैयार किया, एक छोटा सा ब्रेक लिया और फिर से अगले डेरिवेशन पर आ गए। तो इस तरीके से नेक्स्ट क्लास में हम लोग सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, उसके इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस के डेरिवेशन को समझेंगे। ये तीनों ही डेरिवेशन बोर्ड में फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं।